Students, in the previous class, we discussed about accommodation of an eye, but not much in detail. We just saw the definition, right? So today, in this lecture, we are going to go through it in detail. All right. So let's see what is range of vision of a normal human eye. So, see, a normal eye can see near and far off objects clearly if the sharp image of these objects are formed on the retina. Since the distance between the lens and the retina is fixed, the distance will be constant, I mean. Okay, so to see the object at different position from the eye lens, what has to be changed accordingly? Focal length has to be changed accordingly. Okay, so to change that accordingly to form sharp image of the objects, we need to adjust the focal length. Focal length is like when we see these rays of light after refraction, they meet at a point and the image will be formed. Okay, the point where the image is being formed, that is what focus. If all the refracted rays are meeting at a point, okay, that point is nothing but focus point. So distance between the center of the lens to the focus is focal length. Okay, so the focal length has to be adjusted so that you can see the images clearly, see the objects clearly. Images can be formed sharp if you adjust the focal length. So if the object to be seen is far off, somewhere at infinity, let's say, then the sharp image of this object can be formed on the retina by increasing the focal length of the eye lens. Okay, so focal length of lens increases. कब increase होगा? When the thickness decreases. So to decrease the thickness of the eye lens, that means to increase the focal length, ciliary muscles need to relax completely. Okay, so what will happen if the ciliary muscle is relaxed completely? The parallel beam of light coming from the far object will focus on retina and hence the object is seen clearly. This is a function of ciliary muscles to accommodate, okay, to focus image on the retina. So if the object is close to the eye, अब बात करते हैं when object is too close, कहीं पास में हो, तो अगर आपको sharp image चाहिए object का, if you want to form it image on the retina, sharp image on the retina, so what will happen? Focal length has to be decreased. अगर फोकल लेंथ डिक्रीज करना है आपको लेंस का, तो थिकनेस क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. Thus, to increase the thickness of the eye lens and to decrease the focal length, ciliary muscles need to contract. अब ये याद रखना कि फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का कैनॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट होता है, ठीक है. सो द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बाय द लेंस ऑन द रेटिना, हेंस द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली. समझ में आया? तो ये जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ का, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ एन आई. द एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन सच अ वे दैट द शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द आई इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई. ठीक है. सो नियर पॉइंट क्या होता है? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच an object can be placed so that its sharp image is formed on the retina without strain. हम रेटिना पे स्ट्रेन दिए बिना सबसे पास वाला डिस्टेंस, नियरेस्ट पॉइंट, विदाउट गिविंग स्ट्रेन टू योर आईज, इफ यू आर एबल टू मेक शार्प इमेज ऑन रेटिना, तो वो पॉइंट होता है नियर पॉइंट, और वो होता है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और इसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. Least distance of distinct vision for a normal eye of an adult is 25 सेंटीमीटर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. उसी तरह फार पॉइंट क्या हो जाएगा? फार पॉइंट क्या है? देखो, फर्स्ट पॉइंट स्लाइड में वही है. फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट जो होता है जहाँ पे आपको इमेज मिल जाता है ऑब्जेक्ट का शार्पली ऑन द रेटिना, अगर फॉर्म होता हो, यानी द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई
at which an object can be seen clearly, okay, which can be formed on the retina of the eye, उसको हम क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं. और एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी. तो रेंज ऑफ विजन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. रेंज ऑफ विजन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का होता है. सो रेंज बिकम्स 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ डिफेक्ट्स के बारे में, कॉमन डिफेक्ट्स. तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, कैटरैक्ट क्या होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं. सो पहला है मायोपिया, राइट. मायोपिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिला, आप ये लोग यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे थ्रू रे डायग्राम्स. देखो पहले बता देती हूँ मायोपिया क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं. यानी इसमें होता क्या है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का, जो बहुत दूर है, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. रेटिना पे बनने की जगह रेटिना से पहले बन जाता है. अब इससे क्या होता है, ह्यूमन आई कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इज अनएबल टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दूर की चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आती है बट पास की चीज़ें नज़र आ जाती है. यही चीज़ हम थोड़ा सा रे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. सी, अगर ये मान लेते हैं आई लेंस रेटिना, ये दिस इज अ ह्यूमन आई. सो रेज आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, रेज आया, रिफ्रैक्ट हुआ. ठीक है, अगेन देर इज सम रे कमिंग फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, रिफ्रैक्ट हुआ. ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट पे. तो ये जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा. लेकिन इमेज फॉर्म कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे होना चाहिए था, पर उसकी जगह कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ये पॉइंट पे हो रहा है. तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना रैदर गेटिंग फॉर्म्ड ऑन रेटिना. समझ गए. तो ये प्रॉब्लम होता है मायोपिया का, मतलब आपको पास की चीजें नजर आती है पर दूर की चीजें आपको नजर नहीं आएगी. समझ में. तो इसको करेक्ट करने के लिए, ये प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉन्केव लेंस. ये हो गया कॉन्केव लेंस. ठीक है, ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, एक सूटेबल पावर का हमें कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ता है. ये कॉन्केव लेंस करता क्या है, डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को जो एंटर करता है आई फ्रॉम द इन्फिनिटी. अब जैसे ये रे आया, डाइवर्ज हो गया, रे डाइवर्ज हो जाता है. अब ये जैसे जैसे रेज जो होते हैं वो क्या हो जाता है, ओरिजिनल पॉइंट देखो, ये कॉन्केव लेंस रखने की वजह से डाइवर्ज होके ये कहाँ मीट कर रहा है, रेटिना पे मीट कर रहा है. जबकि ये कैसे जाना चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए. ये पॉइंट पे इमेज जो फॉर्म होना चाहिए उसकी जगह कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा. समझ कर. सो दिस लेंस मेक्स द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टेड आई. ठीक है, ऐसे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस. समझ गए. इसी चीज को यहाँ पे हमने डिटेल में दिया हुआ है. तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इट इज रीफोकस्ड ऑन द रेटिना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मायोपिक आई. ठीक है, उसके करेक्शन कुछ इस तरह होगा. अब देखते हैं दूसरा डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस. ये मायोपिया का सीधा ऑपोजिट है. इसमें क्या होता है कि उसको दूर की चीज़ें, ह्यूमन आई को दूर की चीज़ें नजर आती है बट पास की चीज़ें नजर नहीं आती है. ह्यूमन आई कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, अब ये करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है ये करेक्ट करने के लिए. ठीक है, ये एक्चुअली कॉज क्या है हाइपरमेट्रोपिया कि इंक्रीज करता है, ये इसलिए होता है, ये डिफेक्ट अराइज इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीज इन फोकल लेंथ होता है आई लेंस का. बहुत ज़्यादा आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है और आई बॉल का जो साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाता है. उसके वजह से हाइपरमेट्रोपिया कॉज होता है. ठीक है, तो इसको करेक्ट करेंगे बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस. ठीक, इसका रे डायग्राम देख लेते हैं. अब इसमें क्या होगा, सी जो रेज आ रहा है वो इंस्टेड ऑफ मीटिंग एट ऑन रेटिना, ये देखो कहाँ मीट हो रहा है, रेटिना के बाहर इस पॉइंट पे, ब्लू पॉइंट दिख रहा है आपको,
वहाँ मीट हो रहा है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. सो टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम what we place convex lens. सेकेंड, जस्ट बिलो जो नीचे जो डायग्राम दिया वहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है. ठीक है. सो द इमेज ऑफ नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. ये प्रॉब्लम है जिसका ये डिफेक्ट हो. सो इसलिए हम क्या करते हैं, इमेज अगर नॉर्मल नियर पॉइंट को अगर फॉर्म करना है रेटिना पे, वो ब्लर होगा. तो नियर पॉइंट ऑफ सच आई इज लिटिल फार फ्रॉम द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई. So this defect can be corrected by using convex lens, right? So अब ये क्या करेंगे, convex lens क्या करता है, reduce करता है divergence of rays of light entering the eye. ठीक है, समझ गए. तो इसमें से जो अगर रेज आ रहा है वो क्या हो जाएगा, instead of meeting the rays behind retina it will meet on retina. ये divergence क्या करता है, light rays का कम diverge करता है और वहाँ इमेज फॉर्म कर देता है. सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. ठीक है, मतलब नियर पॉइंट ऑफ द आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया रिसाइड्स अवे. तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस. और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस जो है रेज का वो कम कर देता है ताकि वो फोकस हो जाए रेटिना पे. ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ये एज के साथ होता है. ये जो प्रॉब्लम है ये एज के साथ होता है. इसमें पास की चीज़ें भी क्लियरली नज़र नहीं आता और दूर की चीज़ें भी क्लियरली नज़र नहीं आता. मतलब वो प्रेसबायोपिया जिसको होता है वो कैनॉट रीड और राइट कंफर्टेबली. इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस. ये डिजीज़ नहीं है, ना हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर इसको करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस. उससे पहले मैं बता दूं इसका कॉज क्या है. सीलरी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. और जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ह्यूमन आई का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस का वो कम हो जाता है और सीलरी मसल्स भी काफ़ी वीक हो जाता है, जिसके वजह से ह्यूमन आई इज़ अनएबल टू फोकस ऑन क्लोज एज वेल एज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. पास के भी और दूर की भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता. तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास बाईफोकल लेंस है. बाईफोकल लेंस कैसे होता है कि ऊपर कॉन्केव लेंस होता है विच फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस होता है विच फॉर्म्स द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस. ठीक है, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, एनेबल पर्सन टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और जो नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है दैट एनेबल्स द पर्सन टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. समझ गए, ये होता है प्रेसबायोपिया. अब कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट एक दूसरा प्रॉब्लम है आई का, जहाँ पे ये भी ओल्ड एज के साथ ये प्रॉब्लम्स देखा जाता है. ये होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक ओपैक मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस, उसके वजह से होता है. सो मेम्ब्रेन क्या करता है, रिड्यूस करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस. तो एज द ओपैक मेम्ब्रेन ग्रोज, जैसे मेम्ब्रेन ग्रो होता रहता है थिकनेस इंक्रीज होता है और नो लाइट फॉल्स ऑन द आई लेंस एंड हेंस आई कैनॉट सी एनीथिंग. दैट्स द प्रॉब्लम, लाइट डज नॉट फॉल ऑन द आई लेंस, जिसके वजह से आपको चीज़ें नज़र नहीं आती. तो जो नॉर्मल विजन है अगर उसको आपको रिस्टोर करना है, सो क्या होगा, वो होगा ओनली आफ्टर द ये जो मेम्ब्रेन है अफेक्टेड लेंस जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा बाय सर्जरी, और एक आर्टिफिशियल लेंस प्लांट करना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है, तब जाके कैटरैक्ट करेक्ट होगा. अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एक रिफ्रैक्शन एरर है. मतलब आपको है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूज जो होता है वो उसमें क्लैरिटी नहीं मिलता. ये इसलिए होता है क्योंकि ये ना लेंस फोकस नहीं कर पाता है और जो शेप है कॉर्निया का उसमें वो डिफेक्टेड रहता है, वो प्रॉपर नहीं होता. और उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंसेज होते हैं. ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो ऑल दिस डिफेक्ट्स. ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जिसको विजुअली चैलेंज्ड लोगों को, वो कौन सा सिस्टम है, ब्रेल सिस्टम. सुना होगा आपको, ये इमेज में दिख रहा होगा, ये रेज्ड डॉट्स होते हैं जिसके वजह से क्या कहते हैं लोग रियलाइज़ करते हैं ये लेटर्स कौन से हैं. जिसको नज़र दिखाई नहीं देता वो यूज़ करता है ये. ठीक है, और ऐसे एक डॉट का मतलब ए है, बी का मतलब 2 डॉट्स है, ऐसे करके दे रियलाइज इट. मतलब ब्रेली क्या होता है, एक रिटन लैंग्वेज है फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन विच लेटर्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट्स.
ये जो रेज डॉट्स है उससे पता चलता है, ठीक है। सो ये डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने, हु वॉज हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है। एक ब्रेल कोड होता है फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस. Many Indian languages can be read and written by using this braille system, ठीक है। तो ये होता है, जैसे हेलन केलर एक अमेरिकन लेक्चरर और ऑथर है, बहुत फेमस और इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे रविंद्र जैन, बाय बर्थ ही वो क्या बोलते हैं, वो ब्लाइंड था, विजुअली चैलेंज था, तो बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने लाइफ में, है ना। डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फेमस लिरिसिस्ट, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर है वो। तो वैसे आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इसका, ठीक है। अब जो चीज़ आपको ध्यान देनी है आँखों के बारे में, दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है आँखों का और एनिमल्स का जो होता है वो डिफरेंट शेप्स और साइज में हो जाता है। आप कैसे ध्यान रखेंगे आँखों का, वॉश योर आइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे विथ क्लीन वाटर, है ना। ऑलवेज रीड बाय कीपिंग द बुक्स एट नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ फॉर डिस्टिंक्ट विजन. प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम इंजरीज एंड फॉरेन बॉडीज मतलब डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह, मतलब डो नॉट रब द आइज विथ हैंड्स टू प्रिवेंट इंजरी टू द आई, ठीक है। फिर विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर कीपिंग द आइज हेल्दी, मतलब द इनएबिलिटी जो होता है आइज का टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट, स्पेशली रात को, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, वो इसीलिए कॉज होता है क्योंकि डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए का, तभी वो होता है, ठीक है। जैसे कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, बटर, ये सब खा के आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं, रिच बना सकते हैं अपने बॉडी को विटामिन ए पे। ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आँखों को टू प्रोटेक्ट योर आइज़. अब आइस ऑफ अदर एनिमल्स की देखा जाए तो वो डिफरेंट शेप्स और साइज का होता है. जैसे क्रैब्स का काफ़ी छोटा होता है, बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक अराउंड. ड्यू टू दिस क्रैब कैन सी एन एनिमी इवन इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. ठीक है. आउल के जो होते हैं वो बड़े आंखें होते हैं, हैविंग लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन द आई. मतलब उनमें ना लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं रेटिना में और बहुत कम कॉर्न्स होते हैं, बहुत कम कॉर्न्स होते हैं. दैट्स वन थिंग. मतलब जिसके वजह से आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे टाइम. ठीक है. तो जैसे बटरफ्लाइज की बात करते हैं, दे हैव लार्ज आइज विच अपियर टू बी मेड अप ऑफ सम थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज. द आइज ऑफ बटरफ्लाई एनेबल टू सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड साइड बट एट द बैक एज वेल. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है.